The today's lecture of computer graphics is the Sutherland Hodgman polygon clipping. This is one of the type of the clipping. We already done the point clipping, line clipping. Cohen-Sutherland algorithm is to be used for the line clipping, and the Lang-Barsky algorithm is also used. But today's lecture we talk about what is the polygon clipping. So the polygon clipping means we can clip all the edges which are, or the portion of the edges which are outside the window area, and represent only the portion which is inside the window portion. That is clipping, or we can calculate the intersection points as we already done in the Lang-Barsky or the Cohen-Sutherland algorithm. So but in case of the polygon clipping, which is also known as the area clipping, we clip the polygon in such a way that कि ऑल एजेस हमारी इनसाइड जो आए वो तो आए, बट जैसे हम कोहन सुदरलैंड में करते थे या लाइन क्लिपिंग में करते थे कि उसमें जो हम इंटरसेक्ट पॉइंट कैलकुलेट कर लिए, देन हमारे पास जो इनसाइड एरिया बचा वो हमारा क्या होता था, वो हमारा इनसाइड एरिया वो विजिबल है। तो लाइन क्लिपिंग में वो पॉसिबल है, बट इन केस ऑफ पॉलीगन क्लिपिंग जो एजेस है पॉलीगन के वो क्या थे, वो डिसकनेक्टेड हो रह जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस वी यूज़ द डिफरेंट एल्गोरिथम कि हमारे पास जो ये पोर्शन आया है तो वो जो एजेस हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। तो कनेक्टेड के लिए इस एग्जांपल में ये पोर्शन कैसे दिख सकता है कि ये वाला पोर्शन, ये वाली एज भी विंडो एरिया का बाउंड्री पार्ट भी इसके साथ कनेक्टेड हो, दिस पोर्शन and then this portion, starting from this, then this portion is also connected। यहाँ पर डिसकनेक्टेड है तो इसे भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर आए नेक्स्ट फर्दर, और दिस पोर्शन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस वर्टेक्स, सो दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड एंड दिस पोर्शन इज ऑल्सो कनेक्टेड। सो इन दिस वे हम पॉलीगन क्लिपिंग करते हैं। सो to clip a polygon, we cannot directly apply a line clipping method to the individual polygon edges. Why? Because this approach would produce a series of unconnected line segments. For that purpose, when we are clipping the polygon, we must bounded the area after the clipping. For example, concave polygon is such that कि यहाँ पर हमने क्लिप्ड किया तो क्लिप्ड पोर्शन इज one portion is this is one portion, another portion is this portion. So we connect all the edges, all the vertices to one another to form a concave polygon. For polygon clipping we require an algorithm that will generate one or more closed area that are then scanned, converted for a area fill. The output of the polygon clipper should be a sequence of the vertices that define the clipped polygon boundaries. Clear? इसमें हम वो vertices बताएंगे जो inside portion आनी चाहिए, and new vertices को calculate करेंगे जो inside, जो intersect point पे आती है। So for that purpose we use the Sutherland-Hodgman polygon clipping. It is basically performed by processing the boundary of the polygon अगेंस्ट ईच विंडो कॉर्नर और एज। हम विंडो एरिया पे अगर पॉलीगन हमारा आता है तो लेफ्ट साइड से भी पॉलीगन को क्लिप करेंगे, राइट साइड, टॉप एंड बॉटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटायर पॉलीगन इज क्लिप्ड अगेंस्ट द वन एज। पहले स्टेप में क्या है कि इन चारों में से कोई एक एज साइड से हम क्लिप करेंगे, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट, राइट और टॉप और डाउन, और वी कैन स्टार्ट विथ लेफ्ट, देन राइट, then top and then bottom clip. Then the resulting polygon is considered। जो फर्स्ट हम लेफ़्ट क्लिप किया, लेफ़्ट क्लिप के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको हम नेक्स्ट आगे स्टेप में यूज़ करेंगे। देन द पॉलीगन इज कंसिडर्ड अगेंस्ट द सेकेंड एज एंड ऑन फॉर ऑल द 4 एजेस। क्लियर? वन बाय वन सभी को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट की आउटपुट सेकेंड वाले स्टेप की इनपुट होगी, तो सेकंड वाले की आउटपुट थर्ड वाले की इनपुट होगी। इसे हम एक एग्जांपल के तौर पर करेंगे।
तो इसमें पॉलीगन क्लिपिंग में जो लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम क्लिपिंग की बात की है, तो वो 4 केसेस हमारे पास बनते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द ओरिजिनल पॉलीगन, दिस इज़ द विंडो एरिया ग्रीन पोर्शन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द structure which represent a polygon shape. So when we are clipping this from left hand side पे जितना पोर्शन आ रहा है ना, बाकी पोर्शंस को नहीं छेड़ना, सिर्फ लेफ्ट क्लिपिंग हो रही है फर्स्ट स्टेप में. तो लेफ्ट पोर्शन ये वाला पोर्शन है, तो इसको क्लिप कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट इस स्टेप में क्या है, क्लिपिंग अगेंस्ट द बॉटम. अब सेकेंड स्टेप में फर्स्ट वाले की आउटपुट क्या आ गई कि लेफ्ट वाला पोर्शन हमारे पास नहीं है. अब इसके बेसिस पे हमने नेक्स्ट स्टेप आया, बॉटम पोर्शन को क्लिप कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में टॉप पोर्शन को क्लिप कर दिया, एंड लास्ट पार्ट में राइट पोर्शन को. क्लियर. तो स्टेप्स हम जिस मर्जी से स्टार्ट कर सकते. फॉर एग्जांपल, वी यूज़ द लेफ्ट क्लिपिंग फर्स्ट. We have the input like this. We have such polygon, we have to clip that polygon by using the Sutherland algorithm. So we have the input, then we starting with the first step, that is the left clipping, then right clipping, bottom clipping, top clipping, and then we get the output of the desired result. Clear. Next, there are some situations which are to be used while we are processing. और हमारे पास 4 केसेस हैं. लेफ्ट क्लिपिंग करेंगे, राइट क्लिपिंग करेंगे, टॉप क्लिपिंग करेंगे एंड बॉटम क्लिपिंग करेंगे. बट इसके अलावा हमारे पास 4 सिचुएशंस है जिसमें हम जो हमारी प्रोसेसिंग के दौरान हमें हेल्पफुल होंगी. तो 4 कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है कि हमारी लाइन जो है वो आउटसाइड टू इनसाइड विंडो एरिया आ रही है, जहाँ इनसाइड से आउटसाइड आ रही है. थर्ड इज़ के इनसाइड ही है हमारे दोनों पॉइंट. फोर्थ इज दोनों पॉइंट आउटसाइड ही है. क्लियर. तो 4 सिचुएशंस हो सकती है. देन हर सिचुएशन पे हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए इन केस ऑफ द पॉलीगन क्लिपिंग. सो द फर्स्ट केस इज इफ द फर्स्ट वर्टेक्स इज एन आउटसाइड द विंडो. पहला पॉइंट जो है वो, पहली जो वर्टेक्स है वो आउटसाइड हो, एंड द सेकेंड वर्टेक्स इज इनसाइड द विंडो, सेकेंड वाली इनसाइड हो. देन द सेकेंड वर्टेक्स इज एडेड टू द आउटपुट लिस्ट. जो हमारी आउटपुट आएगी, एक लिस्ट हम तैयार करेंगे जिसमें हमें आउटपुट बतानी है, जिसमें हम नंबर ऑफ वर्ड्सेस बतानी है जो आउटपुट में आएगी. नंबर ऑफ वर्ड्सेस आउटपुट रिजल्ट में कौन कौन सी आ रही हैं. तो इसमें से कौन सी हमारी आउटपुट रिजल्ट में आएगी, जब आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हैं तो V2 हमारी आउटपुट लिस्ट में आएगी. देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द विंडो बाउंड्री, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. द पॉइंट इज यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, उसे हमने मान लिया V1 डैश. द पॉलीगन साइड एज इज ऑल्सो एडेड टू द आउटपुट लाइन. पॉलीगन साइड एज क्या है कि ये जो एज है इज़ ऑल्सो एडेड टू द आउटपुट, के उसे भी हम आउटपुट एज में जो है एज लाइन में ऐड कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज द इफ द बोथ द वर्टिसेस आर इनसाइड द विंडो बाउंड्री लाइक दिस इज अवर विंडो एंड V1 V2 जो वर्टिसेस हैं, वो जो लाइन है वो इनसाइड द बाउंड्री है. देन हमारी क्या आउटपुट होगी, देन ओनली द सेकेंड वर्टेक्स इज एडेड टू द आउटपुट लिस्ट. तो सेकेंड वर्टेक्स जिस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन इस साइड है, तो इसमें सेकेंड वर्टेक्स कौन सी है, V2. तो V2 हमारी आउटपुट लिस्ट में एडेड होगी. नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट वर्टेक्स इज इनसाइड द विंडो एंड द सेकेंड इज आउटसाइड द विंडो, देन आउटपुट हमारी क्या आएगी, द एज विच इंटरसेक्ट विद विंडो इज एडेड टू द आउटपुट लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, V1 इनसाइड है, V2 आउटसाइड है, V1 टू V2 इनसाइड टू आउटसाइड जा रही है, तो सेकेंड वाली जो है वो आउटसाइड है. तो इंटरसेक्ट जहाँ पर पॉइंट हो रहा है, इंटरसेक्ट पॉइंट को हमने यहाँ पर मान लिया V1 डैश. तो दिस पॉइंट इज एडेड टू द आउटपुट लिस्ट. क्लियर. नेक्स्ट, फोर्थ सिचुएशन इज इफ बोथ द वर्टिसेस आर आउटसाइड द विंडो एरिया, देन नथिंग इज एडेड टू द आउटपुट लिस्ट. जब दोनों ही बार है, दैट लाइन इज रिजेक्टेड. क्लियर. तो 4 स्टेप्स हैं, तो इनको ध्यान रखते हुए हमने एग्जाम्पल करनी है. तो 4 स्टेप कौन से थे, अगर हमारा इफ़ द फर्स्ट वर्टेक्स इज एन आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हैं, तब हमारी आउटपुट क्या होगी, जो इनसाइड पे है V2. जब हमारे दोनों इनसाइड है, देन हमारी क्या होगी, फिर सेकेंड वाली वर्टेक्स होगी आउटपुट.
अगर हमारी वर्ड्स से जो है इनसाइड टू आउटसाइड जा रही है, देन इंटरसेक्ट पॉइंट पे न्यू पॉइंट डाल दो, लाइक v1 डैश है, दिस पॉइंट इज एडेड टू द दिस वर्टेक्स इज एडेड टू द आउटपुट लिस्ट. When both are outside, the line is completely rejected, not visible. Clear? With these four situations, these four situations are to be used in the example that we will discuss in the next video lecture.